السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی دروس اللغة العربیہ کا جو پہلا والیوم ہے اس کے پہلے لیسن کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس پہلے لیسن کو کنٹینیو کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں وہ یہ ہیں کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ جو ہوتا ہے، سینٹنس آپ جسے کہہ لیں، کلام بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ ورڈز سے بنتا ہے جسے ہم عربک میں کہتے ہیں کلمہ. اور وہ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. انگلش لینگویج میں ورڈز کے جو ٹائپس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں: ناؤن، ورب، ایڈورب، کنجکشن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، پرپوزیشن اور انٹرجیکشن. یہ 8 پارٹس آف اسپیچ ہے. مگر عربک لینگویج میں پارٹس آف اسپیچ جو ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ کلمے کے جو اقسام ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. ایک تو اسم ہوتا ہے، دوسرا فعل ہوتا ہے، اور تیسرا حرف ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پارٹیکل. اسم یعنی ناؤن، ورب یعنی فعل، پارٹیکل یہ حرف ایسا ورڈ ہوتا ہے جو نہ فعل ہوتا ہے نہ اسم ہوتا ہے. یہ نہ فعل کی سائنس قبول کرتا ہے نہ اسم کی سائنس، بلکہ ان کی کچھ اور فنکشنز ہوتے ہیں جیسا کہ ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دیکھیں گے. اور یہ جو 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں ان میں انگلش کے جو 8 پارٹس آف اسپیچ سے وہ سب سمائے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں ہوتے ہیں پریپوزیشن، کنجکشن، یہ حرف میں ہی شمار ہوگا عربک میں. فعل، ورب سیم ایز ان انگلش. اسی طرح اسم عربک میں جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اسم میں مراد عربک میں ناؤن بھی ہوتا ہے، پروناؤن بھی ہوتا ہے، ایڈجیکٹو بھی اس میں ہی آتا ہے، ایڈورب بھی اس میں ہی آتا ہے، اور انٹرجیکشن بھی اس میں ہی آتا ہے. اور انٹرجیکشن کے لیے عربک میں ہمارے یہاں ایک قسم کا ورڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسم الفعل. سو عربک میں جو پارٹس آف اسپیچ ہے یا ورڈز کے جو ٹائپس ہے وہ یہ 3 ہے: اسم، فعل اور حرف. اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، حرف یعنی پارٹیکل. اب چونکہ جو ہم اس پہلے پارٹ میں زیادہ ناؤنس کے متعلق پڑھ رہے ہیں، عربک میں ناؤنس کی کچھ اینڈنگس ہوتی ہے، یعنی لاسٹ پہ واول سائنس ہوتی ہے ناؤن کی فنکشن کو سینٹنس میں ڈینوٹ کرنے کے لیے. ایک تو ضمہ ہوتی ہے جسے ہم پیش کہتے ہیں، فتحہ ہوتی ہے جسے ہم زبر کہتے ہیں، اسی طرح کسرہ ہوتی ہے جسے ہم زیر کہتے ہیں. جسے کتابن، اسے ضمہ کہیں گے، کتابن اسے فتحہ کہیں گے، کتابن اسے کسرہ کہیں گے. اب کبھی ہم دیکھتے ہیں ناؤن پہ یا تو لاسٹ پر ایک حرکت ہوتی ہے یا ڈبل حرکت ہوتی ہے، تنوین ہوتی ہے. یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کب ایک ہی حرکت دیتے ہیں اور کب ڈبل حرکت کب ہم تنوین دیتے ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. فی الحال ہمیں یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ when the last letter of a noun has a ضمہ، جب لاسٹ پر کسی ورڈ کے ضمہ ہوگا، پیش ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں اس ناؤن کو کہ یہ مرفوع ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں نامینیٹو کیس. یہ ہمیں یاد نہیں رکھنا چونکہ ہم عربک پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ نوٹس میں یہ نامینیٹو کیس، ایکوزیٹو کیس، جینیٹو کیس آئے گا، ہمیں یاد رکھنا ہے مرفوع. کہ جب ہم کسی ناؤن پر لاسٹ پر ضمہ دیکھیں گے ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے. وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دھیرے دھیرے آگے دیکھیں گے. فی الحال ہمیں آپ یہ سمجھیں کہ فی الحال ہمیں اس کو گوٹافیکیشن یاد رکھنا ہے ایسے ہی کہ جب ہم ناؤن کے لاسٹ پر ضمہ دیکھیں گے ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. جب ہم ناؤن کے لاسٹ پر فتحہ دیکھیں گے ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. جب ہم ناؤن کے لاسٹ پر کسرہ دیکھیں گے ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے. یہ فی الحال ہمیں یہ ٹرمز یاد رکھنی ہے خالی: مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع یعنی فی الحال آپ یاد رکھیں مرفوع مطلب ضمہ، منصوب یعنی فتحہ، مجرور یعنی کسرہ. مرفوع یعنی ناؤن جو ہے اس کے آخری لیٹر پر ضمہ ہے، منصوب یعنی اس کے آخری لیٹر پر فتحہ ہے، مجرور یعنی اس کے آخری لیٹر پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. یہ 3 ٹرمز ہمیں یاد رکھنی ہے: مرفوع، منصوب اور مجرور. کل ہم نے دیکھا کہ شیخ
ने बयान किया था कि इस किताब में हमें पढ़ना है, पहला लेसन जो था वो किसके मुतलिक था? वो हाजा के मुतलिक था। वो हाजा के मुतलिक था, और हमने कहा था कि हाजा का मतलब होता है दिस, ये, इसे हम इशारा करते हैं। और ये हाजा जो है ये भी नाउन है, ये भी इसम है, मगर ये कैसा इसम है? इसे कहते हैं इस्म इशारतिन। इस्म इशारतिन, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन, ये इसमें इशारा है। मगर ये इसमें इशारा, ये इसमें इशारा किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिल मुफरद, मुफरद के लिए, यानी सिंगुलर नाउन के लिए। यानी इससे हम इशारा किसी सिंगुलर चीज की तरफ कर सकते हैं। मुजक्कर के लिए यानी मैस्कुलाइन के लिए। अल करीब, यानी वो चीज नजदीक होनी चाहिए। अल आकिल, और वो चीज जिसकी तरफ इशारा की जा रही है, वो चाहे फिर आकिल हो या गैर आकिल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हाजा से हम आकिल चीज की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, और गैर आकिल चीज की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। इसलिए हाजा जो है ये इसमें इशारा है। हमें याद रखना है कि इसे हम अरबिक में क्या कहते हैं, ग्रामर में हम इसे कहते हैं इस्म इशारतिन। इशारा यानी इशारा करना, यानी इससे हम इशारा करते हैं, किसी चीज की तरफ हम रेफर करते हैं। और ये इसमें इशारा हाजा जो है, ये उस चीज की तरफ इशारा करता है जो एक तो सिंगुलर होना चाहिए, मुजक्कर होना चाहिए, और नजदीक होना चाहिए। आकिल की मिसाल हाजा रजुलन, देखिए रजुलन, ये सिंगुलर नाउन है, मैस्कुलाइन है, और ये क्लोज होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। हाजा वालदुन, ये लड़का है। गैर आकिल की मिसाल हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज ए बुक। हाजा बाबुन, दिस इज ए डोर। इसलिए हाजा जो है, हाजा का मतलब है दिस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन है। इसम इशारतिन, किसके लिए? मुफरद मुजक्कर करीब के लिए, यानी सिंगुलर मैस्कुलाइन, जो नियर बाई चीज हो उसके लिए। मा हाजा, मा, हमने एक और वर्ड देखा था मा जो है, ये भी इसम है, मगर ये इसम इस्तिफाम। इस्तिफाम जो है ये निकला है फहम से। फहम का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग। इसे इसम इस्तिफाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसे किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज का तस्वुर, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज के मुतलिक हम कुछ समझना चाहते हैं कि ये क्या चीज है। इसलिए ये जो इसमें इस्तिफाम है, इमा जो है ये इसमें इस्तिफाम है, मगर किसके लिए खास? गैर आकिल के लिए। ये गैर आकिल के लिए खास, इससे हम गैर आकिल चीज की तरफ इस्तेमाल, इसे इसे हम गैर आकिल चीज के मुतलिक सवाल कर सकते हैं। गैर आकिल, नॉन लिविंग नहीं का हम कहेंगे, हम कहेंगे गैर आकिल। क्योंकि अगर हम नॉन लिविंग कहेंगे, फिर उसका मतलब ये होगा कि मसला अगर पेड़ है, पेड़ जो है वो ग्रो करता है, इट्स ए लिविंग थिंग, मगर वो गैर आकिल है। इसलिए अरबिक में हम कहते हैं गैर आकिल की माँ जो है, ये गैर आकिल चीज के लिए हम इससे सवाल करते हैं। इसलिए माँ जो है ये क्या है? ये इसमें इस्तिफाम है, इसमो इस्तिफामिन। हादा इसमें इशारा है, माँ इसमें इस्तिफाम है, और ये अपने सेंटेंस को क्वेश्चन में तब्दील करता है। जैसे माँ हादा, हादा किताबुन, ये क्या है? ये किताब है। माँ हादा, ये क्या है? हादा बाबुन, ये दरवाजा है। देखिए किताब गैर आकिल है, बाब गैर आकिल है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कलम, ये कलम है, कलम भी गैर आकिल है। अब अगर हम कहेंगे मा हाजा, ये क्या है? हम नहीं कह सकते हाजा रजुल, क्योंकि रजुल जो है ये आकिल है, रजुल ये आकिल है। और माँ से हम गैर आकिल के मुतलिक सवाल करते हैं। इस तरह मा हाजा, हाजा वालद, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वालद जो है ये आकिल है। सो माँ जो है ये क्या है? अब ये इसमें इस्तिफाम है, इस्मो इस्तिफामिन, इस्मो इस्तिफामिन। उसके बाद है लफ्ज हमजा। अ, जो है ये हर्फ है, ये हर्फ पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऑफ इस्तिफाम है। या इसे हम हमजतुल इस्तिफाम भी कहते हैं, या हर्फ इस्तिफाम भी कहते हैं। कहते हैं हमजा जो है ये हमजा इस्तिफाम, हमजतुल इस्तिफाम है। हर्फुन, ये हर्फ है, जवाब हो, और इसका जवाब जो आता है, रेस्पॉन्स जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे किया जाता है, इसका जवाब आता है किससे? नाम से और ला से। इसलिए नाम और ला, इन दोनों को कहा जाता है हर्फ जवाब। ये भी हर्फ है, नाम भी हर्फ है, और ला भी हर्फ है, और इन दोनों को हर्फ जवाब कहा जाता है, हर्फ जवाब कहा जाता है।
नाम हरफ जवाब लिल इस्बात होता है, क्योंकि हम इसे कोई चीज, किसी चीज की एफर्मेशन देते हैं। और ला जो होता है ये हरफ जवाब होता है, हरफ जवाबिन लिन नफी। इसे हम किसी चीज की नेगेशन करते हैं। नफी का मतलब होता है नेगेशन, इस बात का मतलब होता है एफर्मेशन। दोनों हरफ जवाब है, मगर नाम यानी यस, ला यानी नो। ये हरफ जवाब इस बात है, इस बात के लिए, एफर्मेशन के लिए। और ला जो है ये हरफ जवाब है किसके लिए? ये हरफ जवाब है नेगेशन के लिए। ठीक है, नेगेशन के लिए। जैसे अहादा शरीर, क्या ये चारपाई है? नाम हादा शरीर, हाँ ये चारपाई। और में आकिल और गैर आकिल का मसला नहीं होता है। हम आकिल और गैर आकिल सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम हादा से नहा ये चारपाई। अहाजा रजुल, क्या ये आदमी? देखिए शरीर ये गैर आकिल है, रजुल ये आकिल है। अहाजा रजुल, क्या ये आदमी है? नाम हाँ, हाजा रजुल ये आदमी है। अहाजा कुर्सी, क्या ये कुर्सी है? ला हादा शरीर, नहीं ये चारपाई है। अहाजा वालदुन, क्या ये लड़का है? ला नहीं, हाजा रजुल ये आदमी है। उसके बाद हमने देखा था मन। और मन जो है ये भी हमने कहा था कि इससे हम सवाल करते हैं। और मन जो है ये भी इसमें इस्तिफाम है, मगर लिल आकिल, आकिल के लिए। माँ जो था ये इसमें इस्तिफाम था गैर आकिल के लिए। मन जो है ये इसमें इस्तिफाम है किसके लिए? आकिल के लिए। जैसे मन हादा, हाजा तबीबुन, ये कौन है? ये डॉक्टर है, आकिल। मन हादा, हाजा वालदुन, ये कौन है? ये लड़का है। मन हादा, ये कौन है? हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। अब अगर हम कहेंगे मन हाजा, ये कौन है? हम किताबुन जवाब नहीं दे सकते। किताबुन के लिए फिर हमें कहना है मा हाजा, इसलिए गलत है। इस तरह मन हाजा, हाजा कलम, ये गलत है क्योंकि कलम गैर अकली। फिर हमें कहना है मा हाजा। अब हम जल्दी से ये तमरीन पढ़ेंगे, इस किताब की जो तमरीन है। कहते हैं मा हाजा, ये क्या है? हम कहेंगे हाजा मकतबुन, ये टेबल है। मा हाजा गैर अकल। अगर लिखा होता है मन हाजा, फिर हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हाजा मुदर्रिसुन या हाजा मुदीरुन। मगर चूंकि मा हाजा है, समझ आ गया कि ये किसी गैर अकल चीज के मुतलिक सवाल है। इस तरह मा हाजा, ये क्या है? हम कहेंगे हादा सरीरुन, सरीरुन ये चारपाई है। मा हाजा, ये क्या है? हम कहेंगे हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा किताबुन। फिर कहते हैं मा हाजा, ये क्या है? हम कहेंगे हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। मा हाजा, ये क्या है? हम कहेंगे हाजा बैतुन, ये घर है। फिर कहते हैं अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? हम कहेंगे नाम हाजा बैतुन। और हम खाली नाम भी कह सकते हैं। हाजा बैतुन अगर नहीं भी लिखेंगे यहाँ पर, वो भी चलेगा, क्योंकि जब हम कहते हैं नाम, हम अफर्म कर रहे हैं, हाँ ये घर है। अहाजा कमीसुन, क्या ये शर्ट है? हम कहेंगे नाम हाजा कमीसुन, नाम हाजा कमीसुन। नाम, ये हमने कहा ये क्या है? ये हर्फ जवाब है, हर्फ जवाबिन लिल इस्बात, एफर्मेशन के लिए हर्फ जवाबिन लिल इस्बात। फिर कहते हैं अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? हम कहेंगे ला हादा कलमुन, ये पेन है। ला ये क्या है? ये भी हर्फ जवाब है, हर्फ जवाबिन, मगर किसके लिए? लिन नफी, लिन नफी। इसे हम नेगेशन करते हैं, लिन नफी। अहादा नजमुन, क्या ये नजम तारा है? हम कहेंगे नाम हादा नजमुन, हाँ ये तारा है। फिर कहते हैं इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। हादा मकतबुन, हाजा इसमें इशारा है। और मकतबुन जो है ये एक इनडेफिनिट नाउन है, इस पे लास्ट पे तनवीन है, यानी ए टेबल। हादा
मकतबुन, दिस इज ए टेबल। और हमने कल देखा कि इज जो है, इज के लिए कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है। जब हम हाजा को मकतब के साथ लाते हैं, इज का माना हमें खुद मिल जाता है। अरबिक में इज के लिए कोई वर्ड नहीं है। और इस तनवीन से हमें ए का माना मिलता है। दिस इज ए टेबल। هذا مسجد. This is a mosque. هذا قلم. This is a pen. هذا سرير. This is a bed. ما هذا? What is this? هذا كرسي. This is a chair. أهذا بيت? Is this a house? لا. No. هذا مسجد. This is a mosque. ये एक मस्जिद है। ما هذا? ये क्या है? هذا مفتاح. ये चाबी है। देखिए, माँ गैर आकिल, मिफ्ता गैर आकिल है, इसलिए माँ आ गया। फिर कहते हैं तमरीन, एक और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? इकरा वक्त, पढ़ो और लिखो। मा हादा, ये क्या है? देखिए, गैर आकिल चीज। हादा कलम, दिस इज ए पेन, ये कलम है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है, दिस इज ए डॉग। मन हादा, ये कौन है? मन हादा, ये कौन है? हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हादा जमलुन, ये ऊंट है, दिस इज ए कैमल। अहादा दीकुन, क्या ये रूस्टर है? नाम, देखिए यहाँ पर खाली नाम लिखा है, नाम यानी यस। नाम का मतलब होता है, यानी इसके बाद खुद समझ आता है, नाम हाजा दीकुन। अहद अहद कल्बुन, इज दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता है? ला, नहीं। हादा कितुन, ये बिल्ला है। अहद हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? ला, नहीं। हादा हिमारुन, ये गधा है। अहद वलदुन, क्या ये लड़का है? नाम, हाँ। मन हादा, ये कौन है? हादा रजुल, ये आदमी है। फिर है वोकेबलरी, इस लेसन की वोकेबलरी, जो हमें इस लेसन में वर्ड है। मगर उससे पहले यहाँ पे हम लेसन का जो आखिरी पार्ट है वो देखेंगे, क्योंकि मैंने जिस किताब से ये लिया था उसमें ये आखिरी शीट मौजूद नहीं था। शायद इसमें लिखना, ये एडिटेबल नहीं है। बहरहाल कहते हैं मा हाजा, ये क्या है? हाजा दीकुन, ये रूस्टर है, मुर्गा है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, ये टीचर है। अहाजा कमीसुन, क्या ये शर्ट है? ला, हाजा मिंदिलुन, नहीं, ये रुमाल है, ये रुमाल है। फिर आखिरी तमरीन लाते हैं, कहते हैं इकरा वक्त, पढ़ो और लिखो। मा हादा, ये क्या है? हादा कलम, ये कलम है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। मन हादा, ये कौन है? हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हादा जमलुन, ये कैमल है। अहादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? ला, हादा कित्तुन, नहीं, ये बिल्ला है। अहादा दीकुन, क्या ये रूस्टर है? नाम, हाँ। अहादा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? ला, हादा हिमार, नहीं, ये गधा है। हाजा मिंदीलुन, ये रुमाल है। अहादा वालदुन, क्या ये लड़का है? नाम, हाँ, ये लड़का है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, ये आदमी है, ये आदमी है। इसके साथ जो है ये पहला लेसन जो हमारा है, ये कंप्लीट होता है। और इस लेसन में जो वर्ड्स आए, वो वर्ड्स यहाँ पे, ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये जो वर्ड्स हमने इस लेसन में सीखे, और इनको आप याद करने की कोशिश करेंगे, और इन लेसन्स में जो सेंटेंस है उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बैतुन, हाउस। वलदुन, बॉय, लड़का। मस्जिदुन, मॉस्क, मस्जिद। तालिबुन, तालिब इल्म। बाबुन, दरवाजा। रजुलुन, आदमी। किताबुन, किताब। ताजुरुन, ताजिर को ही कहते हैं। कलम, कलम को ही कहते हैं। कल्बुन, कुत्ता। मिफ्ताहुन, चाबी। कित्तुन, बिल्ला। मकतबुन, टेबल, मेज। हिमारुन, गधा। सरीरुन, चारपाई। हिसानुन, घोड़ा। कुर्सीयुन, कुर्सी। जमलुन, ऊंट। नजमुन,
तारा, दीकुन मुर्गा, कमीसुन कमीज, मुदर्रिसुन उस्ताद, तबीबुन डॉक्टर, मिंदीलुन करचीफ यानी रुमाल। पहला लेसन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस लेसन में अब हमने क्या सीखा? इस लेसन में हमने सीखा एक तो हाजा, और हमने सीखा माँ, इसी तरह हमजा और मन, और मन। और आज हमने एक और चीज़ ये देखी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अरबिक में है, या वर्ड्स के जो अकसाम हैं जिससे कलाम सेंटेंस अरबिक में बनता है, वो कितने हैं? वो तीन हैं। इस्मुन, फिअलुन और हरफुन। ठीक है। और हमने कल देखा था कि फिलहाल हमें इस पहले पार्ट में क्या देखना है? हमें देखना है जुमला इस्मिया, यानी नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस इंशाल्लाह तीसरे लेसन में हम देखेंगे कि जुमला इस्मिया जो होता है वो दो पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अरबिक में हम कहते हैं, जुमला इसमें हम ग्रामर ग्रामर में कहते हैं मुब्तदा, और प्रेडिकेट को कहते हैं खबर। प्रेडिकेट को कहते हैं खबर। ये हम इंशाल्लाह ताला आगे तीसरे या चौथे लेक्चर में हम तफसील से देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे सेंटेंस है हादा मस्जिद। हादा मस्जिद। हाजा जो है यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है, यानी इस हाजा के मुतालिक हम कुछ कह रहे हैं। ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसे हम अरबिक अरबिक में इंग्लिश अरबिक ग्रामर में कहते हैं मुबतदा उन। मुबतदा ये निकला है इब्तिदा से। मुबतदा का मतलब ये होता है इब्तिदा, यानी ऐसा नाउन जिससे सेंटेंस की इब्तिदा की गई है और जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, यानी सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में हम क्या करें? मस्जिद, की ये मस्जिद है। मस्जिद जो यहाँ पर है ये इसकी खबर है। इसको हम अरबिक में ग्रामर में कहते हैं खबर, यानी कोई इंफॉर्मेशन जो हम सब्जेक्ट के बारे में ही दे रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह ताला आगे तफसील के साथ देखेंगे। क्योंकि इस किताब में हमें जो जिस चीज़ पर फोकस करना है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वो क्या है? वो है जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया जो है जुमलतुन इस्मियतुन। जुमला इस्मिया इसके दो पार्ट्स, जुमला इसमें दो पार्ट्स से बनता है। एक तो होता है मुब्तदा, सब्जेक्ट, और दूसरा होता है खबर, यानी प्रेडिकेट। ये हम इंशाल्लाह ताला आगे तफसील के साथ देखेंगे। यहाँ फिलहाल जो है पहला लेसन जो है वो इख्तिताम को आता है। इंशाल्लाह ताला कल हम इस किताब का दूसरा चैप्टर देखेंगे। आज हम यहाँ पर इस लेसन का इख्तिताम करते हैं। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।